Hello learners and welcome back to your own channel LIY English, Learn It Yourself. So in this video we will be learning the second poem from the 11th standard English of Maharashtra State Board. It is 2.2 The Sower. The poem The Sower was written by Victor Hugo. He was a French poet, novelist and a dramatist. He was the most important of the French romantic writers. In France, he is regarded as one of the country's greatest poets. But in abroad, he is famous for his novels Notre Dame de Paris and Les Miserables. ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है एंड आई एम श्योर कि मैंने ठीक ठाक ही प्रोनाउंस किया है. The poem The Sower is originally written in French, which was translated in English by an Indian poet named Toru Lata Dutt. She was a Bengali and was known as Toru. She wrote in English and French. She is considered to be the first Indian poetess to write verses in English and French. उन्होंने 21 साल की अपनी छोटी सी जिंदगी में अपनी मौत से पहले दर्जनों पोएम्स का ट्रांसलेशन किया और एक नॉवेल भी कंप्लीट किया. उनकी पोएम्स जैसे सीता, लोटस और आर कैजुएरियाना ट्री को खूब पसंद किया जाता है. नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. टू सो का मतलब होता है बीज बोना, तो सोअर का मतलब हुआ बीज बोने वाला. यहाँ पे इसका मतलब है फार्मर, किसान. पोएम का टाइटल ही है सोअर, तो वी कैन अज्यूम दैट पोएम इज अबाउट अ फार्मर हु इज सोइंग सीड्स. The farmer who has seen many bad harvests in his life, however, he is still very positive, still optimistic of having a good harvest every time he tosses grain. There are 5 stanzas in the poem of 4 lines each. The rhyme scheme of the poem is AB AB. Now let us read and try to understand the poem in detail, line by line. And as always, difficult words के meaning stanza के नीचे दिए हुए हैं. First, I will recite the lines, then I will explain them in English and in Hindi. Let us begin. Sitting in a porchway cool, sunlight I see dying fast. Twilight hastens on to rule. Working hours have well nigh passed. The poet says that one day he was sitting in the porchway of his house. The weather was cool as it was the time of evening. Probably the poet was sitting to enjoy the sunset. He saw as the evening approached, the sunlight was dying fast, as twilight was hastening to rule. The evening was converting into the night as the darkness started to dominate the light and spread all around. And working hours of the day were almost over, as this is the time people suspend all the work and activities for the next day. तो पहले स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि एक शाम वो अपने घर के बरामदे में बैठे थे. शाम का वक्त था, इसलिए मौसम भी बहुत ठंडा यानी कि कूल था. शाम बहुत तेज़ी से ढल रही थी और दिन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ रात में बदल रहा था. हर जगह रात का अंधेरा छा जाने को था और दिन के जो वर्किंग आवर्स होते हैं, घंटे जिनमें हम काम करते हैं दिन भर, वो बहुत ऑलमोस्ट तकरीबन ओवर होने को थे, ख़त्म होने को थे. Shadows run across the lands, but a sower lingers still. Old in rags, he patient stands. Looking on, I feel a thrill. Now the evening had reached a point where the shadows of the people running towards their homes were easily visible. Observing all this from a cool porchway, the sight of a sower caught the attention of the poet, who still lingered. He was not hurrying to go home. He looked old in his age and was in rags. He was standing patiently. Looking at the sower, the poet felt a thrill. दिन का उजाला पूरी तरह से ढल चुका था और गहरी रात, गहरी शाम हो चुकी थी. और अब लोगों के घर की तरफ बढ़ने की जो परछाइयाँ हैं वो बहुत ईजिली विजिबल थी. हर जगह लोगों की परछाइयाँ दिखाई दे रही थी जो अपने घर की तरफ दौड़ रहे थे, क्योंकि अभी काम करने का समय ख़त्म हो चुका था. उसी दौरान पोएट की नज़र एक सोअर, एक फार्मर पे पड़ती है, जो अभी तक अपने फील्ड में, अपने फार्म में खड़ा हुआ है. उसे घर में जाने की कोई भी जल्दी दिखाई नहीं पड़ती है. उम्र में वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, ओल्ड लगता है और फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है और बहुत ही शांति के साथ, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ वो अपने फार्म में खड़ा हुआ है. और इन्हें देखकर, इस फार्मर को देखकर पोएट अचानक ही एक्साइटेड हो जाते हैं. ब्लैक एंड हाई हिज सिल्हूएट dominates the furrows deep.
Now to sow the task is set, soon shall come our time to reap. The poet says that as the sower was standing patiently in his field, his shadow, which was dark and high, dominated the furrows. Poet thinks that the sower is dreaming and hoping for a good harvest, for a good yield. As it is the time to sow the seeds, soon the crops will grow and sower will be able to reap the fruit of his hard work. पोइट कहता है कि ये जो फार्मर है, ये जो सोअर है, इसकी जो परछाई है, काली गहरी परछाई, ऊंची परछाई, जो फरोज को पूरी तरह डोमिनेट कर रही है। फरोज पे उसकी जो परछाई है वो पड़ रही है। फरोज का मतलब होता है एक लॉन्ग नैरो ट्रेंच जो हल की खुदाई करके, हल की हेल्प से खुदाई करके बनाई जाती है, जिसमें बीज बोया जाता है। तो इन पूरी फरोज पे उसकी काली परछाई पड़ रही है और एक तरह से डोमिनेट कर रही है। उसको देख के लगता है कि वो सपने देख रहा है अच्छे फ्यूचर के, एक अच्छी फसल के। अभी ये वक्त है बीज बोने का, अभी वक्त है मेहनत करने का। आज अगर ये बीज बोएगा तो बहुत जल्द ये बीज अच्छी फसल में तैयार होगी और उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा। शायद यही उम्मीद की वजह से, शायद यही सोचकर वो अभी घर जाने की जल्दी नहीं कर रहा है। उसे लगता है ये वक्त है मेहनत करने का और उसे आज ही बीज बोना चाहिए। इससे पता चलता है वो कितना डेडिकेटेड है अपने काम को लेके और कितना उम्मीदों से भरा है, कितना पॉजिटिविटी से भरा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सबको पता है कि फार्मर्स की लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली होती है। ऐसे कई बार हुआ होगा कि उसने बहुत बुरे हार्वेस्ट, बहुत बुरी फसल देखी होगी, लेकिन फिर भी जब हर बार वो बीज बोता है, वो उम्मीदों से भरा हुआ होता है। वो सपने देखता है अच्छाई के, कि उसके साथ अच्छा होगा। ये जो बीज अब बो रहा है, उसकी फसल इस बार तो अच्छी ही होगी। Marches he along the plain to and fro, and scatters wide from his hands the precious grain. Muse I as I see him stride. With all the positivity and hopes, the sower marches, walks to and fro along the plain, and scatters the grains from his hands. The grains are precious for the sower, as they will grow into the crops and will benefit the sower. They will make him prosperous. Seeing him, the poet rests in deep thought. It affects him deeply. पोइट अब इस सोअर की हर हरकत पे नज़र रखे हुए है और उसे डीपली ऑब्जर्व कर रहा है। वो देखता है कि कैसे ये जो सोअर है वो पूरे अपने मैदान, अपने खेत में इधर से उधर चल चल के मार्च करते हुए बीजों को फैला रहा है, बीजों को बो रहा है। बीज जो कि उसके लिए बहुत प्रेशियस है, उसके लिए बहुत वैल्यूबल है। हम सब जानते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि किसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती कोई असेट होता है तो वो होता है ग्रेन, वो होता है उसके लिए बीज, क्योंकि यही बीज आगे चलकर फसल में तब्दील होती है और उसे वो खुशहाली देगी। सोअर को अपने खेत में इस तरह मेहनत करते देख पोएट बिल्कुल मग्न हो गया है और गहरी सोच में डूब गया है। डार्कनेस deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. Now the darkness of the night deepens. There is no more sunlight, and the gestures of the sower, his activities, his determination, his dedication and hard work makes him august in the eyes of the poet. The poet feels reverence for the sower, and strangely the height of the poet seems to touch the starry skies. अब रात का अंधेरा गहरा हो चुका है और जो शाम की धुंधली सी रोशनी थी वो भी बिल्कुल गायब हो चुकी है और पोएट अभी तक इस सोअर को ऑब्ज़र्व कर रहा है और उसकी सारे जो जेस्चर्स है, बॉडी मूवमेंट्स है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, ये सब ऑब्ज़र्व करते हुए पोएट को लगता है हर छोटी सी चीज़ जो वो कर रहा है उसकी नज़र में वो नोबल है, वो ऑगस्ट है, बहुत महान है। और अचानक से वो उसकी नज़र में ऐसे लगता है कि उसकी हाइट, उसे ऐसे लग रहा है कि तारों से भरे आसमान को छूने लगी है। यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे रात गहरी होती जाती है, अंधेरा ज़्यादा गहरा होता है, तो हमारी जो परछाई होती है वो और ऊंची होती जाती है, टॉल होती जाती है। उसी चीज़ को कंपेयर करके पोएट कहते हैं कि अचानक से उसे ऐसे लगने लगा है कि उसकी जो हाइट है, उसका जो कद है, इस किसान का जो कद है वो
पोइट की नज़र में बहुत ऊंचा हो गया है, इतना ऊंचा कि वो अब आसमान छूने लगा है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अपने डेडिकेशन की वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से, अपनी अच्छी नीयत की वजह से उसकी हर चीज़ बहुत महान लगने लगी है और पोइट की नज़र में ये किसान बहुत महान है और उसका जो कद है पोइट की नज़रों में बहुत ऊंचा हो गया है। So this was all about the poem The Sower. Let us quickly summarize whatever we have learnt in the poem. As we saw that the poem is about the hard work and persistence of a sower. He works tirelessly and his dedication makes him very noble and respectable in the eyes of the poet. Poem takes the optimistic tone as it focuses on the hopes of the sower for a good yield despite having seen many bad harvests. पोएम द सोअर हमें हार्डवर्क, मेहनत और परसिस्टेंट का सबक देती है। इस पोएम से बहुत अच्छा मैसेज देते हैं पोइट हमें। वो कहते हैं कि किसी का रुतबा, किसी के उम्र, किसी के लुक, किसी के ड्रेस सेंस या किसी के स्टेटस या पैसों से नहीं होता है। हमने देखा कि जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया सोअर का कि वो ओल्ड है और फटे पुराने कपड़ों में है, लेकिन फिर भी सोअर पोएट की नज़रों में बहुत ऊंचा है। उसकी नज़रों में उसका कद बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत महान है सोअर पोएट के लिए। तो किसी का रुतबा अगर ऊंचा होता है तो वो होता है उसकी मेहनत से, उसकी डेडिकेशन से, उसकी लगन से और हमेशा अच्छा सोचने से। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये जो सोअर है वो ऑप्टिमिस्टिक है? हमें इसी वजह से पता चलता है कि जब सारा दिन ढल चुका है और लोग जब दिन ख़त्म हो जाता है तो काम ख़त्म हो ना हो अपने घरों की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन ये पोएट उजाला ख़त्म हो जाने के बावजूद, दिन ख़त्म हो जाने के बावजूद अपने घर जाने की जल्दी नहीं कर रहा है। वो काम ख़त्म करके ही घर जाना चाहता है क्योंकि वो उसको उम्मीद है कि इस बार फसल अच्छी होगी। इससे पता चलता है कि वो कितना ऑप्टिमिस्टिक है। शायद उसने बहुत ज़्यादा बैड हार्वेस्ट देखे होंगे, उसके बावजूद वो हार नहीं मानता है, उसके बावजूद वो नेगेटिव चीज़ की तरफ नहीं देखता है और सिर्फ करने के लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि लगन से काम कर रहा है। इससे पता चलता है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। So this was a wonderful poem, The Soul. I hope you enjoyed learning with me. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.